ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰੇ ਮੈਥ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਕੀ? ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ। ਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 100। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਨਿਕਾਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1/100। ਓਕੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ 25%। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/100। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 25/100। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/4। ਓਕੇ। ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 25% ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4। ਇਸਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ 4 ਦਾ 25% 1 ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4 ਦਾ 25% ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 1 ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ 30%, ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 30 ਅਪੋਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 100। 1/100 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ 3/10। ਇਹ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ। 10 ਦਾ 30%, 10 ਦਾ 30% 3 ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 25%, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 25% ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਾਂ 1/100 ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 25/100 ਯਾਨੀ 1/4। ਓਕੇ। 10%, 10/100 0 ਨਾਲ 0 ਕਰਤੀ 1/10। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇਸਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 20%, 20/100 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟਤੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1/5।
2 एकम 2 2 5 10। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 20% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/5। ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਦਾ 20% ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਆਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25% ਦਾ ਜੇ 1/4 ਕੀਤਾ ਸੀ 4 ਦਾ 25% 1 ਹੈਗਾ, 10 ਦਾ 10% 1 ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 45% ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, परसेंटेज की जगह आप 100 पा देने तो यदि फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 9/20। ओके, अगर मैं 20 का 45% करा तो 9 आएगी। ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होएगी, ये इसकी रिजल्टेंट वैल्यू होएगी। इस तुहानू कोई शक नहीं होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है 5%, इसनू तुसी कमेंट्स एदा आंसर लिख करियो। ओके, ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ 1/4, ਜੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੋਵੇ ਅਪੋਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਜਿਵੇਂ 1/10 ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, 2/3 ये भी फ्रैक्शन है, 1/4 ये भी एक फ्रैक्शन है। ओके, इस तुहानू कोई शक नहीं होना चाहिए। 1/4 अगर आप फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाने तो आप 100 दे नाल आप मल्टीप्लाई कर देने। ओके, तो की आ गया 25%। अगर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाते सी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 100 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 1/10 ਹੈ ਇੰਟੂ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10%। 1/5 ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20%। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ 25% ਹੈ, 25% इज इक्वल टू 1/4। अगर आप 4 का 25% करिए तो 1 आएगा। 9/20 भी सिंपल है, इसनूं तुसी कमेंट्स एज आ आंसर जरूर लिखना अगर तो समझ आ रहा है तो। ठीक है, इस तरीके नाल होर भी फ्रैक्शन वैल्यू हैगी है 1/12, 1/8, 1/11, 1/10, 1/11। मैं 1/12 ਨੂੰ करके दिखाना 1/12 इंटू 100। इसनों मैं 4 ਦੇ टेबल 4 तीए 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25/3। इसकी अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू कहना 8/33% आ जाएगा। 1/8 भी सिंपल हैगी, 1/11 भी सिंपल है, 1/10 भी सिंपल है, 1/11। 1 तो लैके 20 तक ये तुहानू ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਟੂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ 1 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 100, 1/2 ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੈਲਿਊ 50%, 1/3 ਦੀ 33.33, 1/4 ਦੀ 25। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ टिप्स से होना चाहिए। तुम एज तुसी स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। हुण आपां कुछ क्वेश्चन करते हैं। लिखिया रजत की सैलरी 50,000 है। रजत सैलरी इज 50,000, विजय सैलरी इज 40,000। रजत की सैलरी 50,000 है, विजय की सैलरी 40,000 है। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਤ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹਾਊ ਮਚ ਪਰਸੈਂਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਿਜੇ ਸੈਲਰੀ। ਰਜਤ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਜੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ परसेंट ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन तुहानू उम्मीद करदा तुहानू ये क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। हुण आपां तुहानू मैं इहदा हुण सोल्यूशन करते हाँ। ओके, मान लैने कि रजत की सैलरी
40,000 है। विजय दी रजत की सैलरी 50,000 दे रखी, विजय की सैलरी 40,000 है। हुण आपां क्वेश्चन च आपां नूं दे रखिया सी कि रजत की सैलरी विजय की सैलरी नालों किन्ने परसेंट ज़्यादा हैगी है। ओके, ठीक है। रजत की सैलरी विजय की सैलरी नालों किन्नी ज़्यादा, पहले तो आप ये देखांगे 50,000 माइनस 40,000 कितना आ गया 10,000। ओके, 10,000 आ गया। रजत की सैलरी विजय की सैलरी नालों 10,000 ज़्यादा है। हुण आपां ये देखना है कि किन्नी परसेंट ज़्यादा है। अपन क्वेश्चन च ये कहा ना कि किन्ने परसेंट ज़्यादा है, आपां उसने क्वेश्चन च उन्हें परसेंटेज पूछे अपने को, सो आपां परसेंटेज विच ही कड्डांगे। परसेंटेज दे विच कड्ढण लई आपां कट लैने परसेंटेज, आप कट लेने परसेंटेज क्या तो औखा, परसेंटेज तो होर भी सौखा है। आ लो 10 किन्नी ज़्यादा हैगी सी 10,000। ओके, किहदे नालों किहदे कंपैरिजन कट रहे हैं आप, विजय दे कंपैरिजन कट रहे हैं, तो 40,000 अपॉन 100। ओके, 3 0 नाल 3 0 कटतियाँ, 1 0 1 0 कटती, मतलब मैं ए कह सकदा कि 25% ज़्यादा हैगी है विजय। तुहानूं लगदा कि इन्ना ताम झाम करन दी लोड़ हैगी सी? बिल्कुल नहीं हैगी सी। तुसी इसनूं डायरैक्ट भी कर सकते कि रजत की सैलरी 50,000 आपां नूं दे रखी है, विजय की सैलरी 40,000 दे रखी है। अगे जे मैं रेशो चैप्टर करवाऊँगा तुहानूं कंसैप्ट होर भी क्लीयर होएगा, जिन्हां ने कर रखे उन्हां लई हैगा है। आपां इसदी रेशो बना लैने आ। ਇਹਦੀ रेशो की होएगी, ਆਪਾਂ 4 0 ਨਾਲ 4 0 ਕੱਟਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ परसेंटेज पूछे ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5:4। ओके, रजत की सैलरी 5 है तो विजय की सैलरी 4 है। रजत की सैलरी विजय की सैलरी नाल कितनी ज़्यादा है 1। किहदे कंपैरिजन कट रहे हैं आप, विजय दे, तो आप 4 ला के आप 100 नाल मल्टीप्लाई कर देने तो 25% आ जाए। विद इन सैकेंड क्वेश्चन सॉल्व होणगे। ये मैं तुहानूं ये दसदा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैगा, लास्ट ईयर आ पेपर के कुछ क्वेश्चन आया होया है पंजाब के पेपरों के विच स्पैशली। ओके, हुण एक क्वेश्चन ये रह गया, इसनूं भी आपां मैं सॉल्व करवाने आ। क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट स्कोर 24% इन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट है, एक वो पेपरों के विच 24% मार्क्स स्कोर कर लैंदा है एंड रिक्वायर्ड 10 मार्क्स मोर टू क्वालीफाई। उसनूं 10 मार्क्स होर चाहिए सी क्वालीफाई होने लई। ठीक है जी। एक होर स्टूडेंट है जिसने 36% मार्क्स ले ली। अच्छा जी, कोई गल नहीं। एंड गोट 2 मोर मार्क्स दैन द बेयर मिनिमम टू क्वालीफाई। अच्छा, उसने पासिंग मार्क्स नालों 2 नंबर ज़्यादा ले लिए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालीफाई। क्वेश्चन मैं दोबारा पंजाबी भी मैं समझाऊँगा, शायद तुहानूं समझ नहीं आया होगा, कोई गल नहीं, आपां दोबारा करते हैं। एक विद्यार्थी ने एक इम्तिहान विचों 24% अंक प्राप्त किए अते योग्यता पूरी करन लई 10 होर अंक की लोड़ सी। एक होर विद्यार्थी ने 36% अंक प्राप्त किए अते योग्यता पूरी करन लई घट्टो घट्ट 2% अंक प्राप्त किए। योग्यता पूरी करने वध तो वध अंक ते घट्टो घट्ट प्रतिशत के अंक ला। तुहानूं क्वेश्चन शायद समझ नहीं आया होगा, मैं तुहानूं पहले कि एग्जाम्पल नाल करवाऊंगा। एक पेपर होंदा है 100 मार्क्स का पेपर होंदा है, टोटल मार्क्स है 100। पासिंग मार्क्स लिए एक पेपर दे विच 40 मार्क्स चाहिए होंगे ने। ओके,
एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। उसने लए ने ए ने लए ने 35 मार्क्स ते बी ने लए ने 45 मार्क्स। ओके, समझ आ गया। हुण मैं ये भी कह सकदा पासिंग मार्क्स हैगे ने 40, पासिंग मार्क्स हैगे ने 40। मैं हुण ए तां भी कह सकदा कि ए दे पासिंग मार्क्स नालों 5 मार्क्स घट ने ते बी दे पासिंग मार्क्स नालों 5 मार्क्स ज़्यादा ने। तुसीं इहनूं 50 कर, बी दे मार्क्स 50 कर लो। मैं ये भी कह सकदा कि बी दे पासिंग मार्क्स नालों 10 मार्क्स ज़्यादा ने। ठीक है ना। इसे तरह इस क्वेश्चन ने एक गल ये कही है। हुण मैं तुहानूं शायद क्वेश्चन की लैंग्वेज तुहानूं समझ आ रही होगी। आप देखो लिखिਆ ए स्टूडेंट स्कोर 24% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट ने 24% मार्क्स एग्जामिनेशन दे विच स्कोर किए एंड रिक्वायर्ड 10 मोर मार्क्स टू क्वालीफाई। उसनूं 10 नंबर होर चाहिए सी क्वालीफाई होने लई। उसे तरीके नाल आपां इसदा स्कोर लईए कि ए स्टूडेंट ने 35 नंबर लै ले ते उसनूं 5 नंबर होर चाहिए सी पास होने लई। स्टेटमेंट सेम है। अनदर स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड 36% मार्क्स। दूसरे स्टूडेंट ने 36% मार्क्स ले तो उसने मिनिमम क्वालीफाई तो 2 मार्क्स ज़्यादा ले ले। उसे तरीके नाल बी ने मिनिमम उसनूं जिन्ने मार्क्स चाहिए सी उसने उस तो 10 नंबर। इसी तरह इस एग्जाम्पल च देखो इसने 10 नंबर ज़्यादा ले ले, क्वेश्चन च ले देखा 2 नंबर ज़्यादा ले ले। स्टेटमेंट सिंपल है तो समझ आएगी। ओके, तो हुण आपां क्वेश्चन स्टेटमेंट एक गल पूछ रहा, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स एंड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालीफाई। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है तो इसनूं आपां करदे हां क्वेश्चन। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को 24% इन एग्जामिनेशन। एक स्टूडेंट के 24% मार्क्स आए ने, मैं लिख देना 24% मार्क्स आए ने एंड रिक्वायर्ड 10% मोर मार्क्स। अगर मैं उसमें 10 मार्क्स होर दे दा वो पास हो जाएगा। ए परसन सपोज कर ले। एक दूसरा परसन है वो 36% मार्क्स है ने, वो 2 मार्क्स ज़्यादा ले बैठा है। आप बस सिर्फ पास ही कर देने, आप ज़्यादा कुछ नहीं करने, आप पास ही करने ने। लो आप इन्ने गल करके हूँ स्टेटमेंट सॉल्व कर लो। 24% ए इत्थे चला गया, कितना रह गया 12% हो गया। ठीक है, तो ए तो 12 हो गया। 1% आ गया 1 के बराबर, तो 100% आ गया 100। ओके, हुण इन्हें एक पहला पूछे सी मैक्सीमम मार्क्स। मैक्सीमम मार्क्स अपने 100% है तो मैक्सीमम मार्क्स अपने आ गए 100। ये पार्ट तो अपना सोल्व। एंड द मिनिमम परसेंटेज मार्क्स किन्ने होंगे। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आप कढ़न लई की कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स नूं कढ़न लई बड़ा ही आसान तरीका है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स पूछ रहे, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स पासिंग मार्क्स पूछ रहे अपने को। तो की करांगे आपां, ठीक है ना। 1% की वैल्यू आपां नूं 24% प्लस स्टेटमेंट च आपां पुट आउट कर देंगे। परसेंट की वैल्यू आपां नूं इत्थे 1 दे रखी, मतलब मिनिमम परसेंटेज मार्क्स अपने 34। इसनूं आपां बी क्वेश्चन च भी पुट कर सकते सी। बी क्वेश्चन च आपां किवें पुट कर सकते सी, देखो 36% माइनस 2। 1% की वैल्यू आपां नूं कितनी दे रखी है, आपां नूं 1% दे रखी है। दोहां पासे आंसर अपना सेम आ रहा है, मतलब अपना क्वेश्चन सही हैगा। उम्मीद है तुहानूं ये क्वेश्चन समझ आए होणगे। अगर तुहानूं ये क्वेश्चन समझ च आए ने
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।